And today we are going to discuss the next phase of the product life cycle. And this was concerned with the growth stage. One thing for sure, your product has survived. जब आपने इंट्रोडक्शन स्टेज को क्रॉस कर लिया, इसका मतलब है the product was able to survive. And that is quite an achievement. एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि most of the product fails in the introduction stage only. तो वैसे में अगर आपका प्रोडक्ट सर्वाइव करता है, इसका मतलब है yes indeed a milestone has been accomplished, right? So now in the growth stage, देखो क्या होना है ना, growth stage is the stage of takeoff. The product has succeeded and therefore the sale will pick up, the sale will accelerate. बहुत रैपिड ग्रोथ होने वाला है सेल्स में, इसीलिए इसका नाम भी है ग्रोथ स्टेज. द प्रॉफिट विल ऑल्सो गो अप रीजनेबली, लेकिन प्रॉफिट उतने फास्ट पेस से नहीं बढ़ेगा, बिकॉज इस सिचुएशन में आप मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ाने वाले हैं. देखो, द रेट ऑफ growth in the sale in this stage will be the fastest. लेकिन इस स्टेज में आपको हाईएस्ट पॉइंट अचीव नहीं कर पाइएगा. क्यों? सेल का हाईएस्ट पॉइंट नहीं अचीव कर पाइएगा. क्यों? बिकॉज आप मार्केटिंग कॉस्ट भी बढ़ाने वाले हैं. दैट इज द स्ट्रेटजी. मार्केटिंग कॉस्ट हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो ग्रोथ का कर्व है वो और स्टीप हो. और स्टीप का मतलब जितना वो स्टीप होगा, जितना वो खड़ा होगा, उतना ज्यादा मेरा प्रोडक्ट उतना लंबे समय तक मेरा प्रोडक्ट मार्केट में सरवाइव करेगा. It will add up to the longevity of the product. The product will survive for a longer period of time. और हम चाहते हैं कि the product survives for the longest period of time. जितना ज्यादा सरवाइव करे उतना अच्छा है, isn't it? So essentially the growth stage is all about ensuring that we add up to the momentum as far as the sale of the product is concerned. ज्यादा से ज्यादा रैपिड उसका जो पेस है वो बहुत बढ़े, और इसका असर क्या होगा? The product will be able to survive in the market for a longer period of time. It is a matter of great satisfaction that your product has been able to survive. The moment you cross the introduction stage, आपका product survive कर गया. Now you have a sigh of relief. क्योंकि remember in the last class we discussed that most of the products fail in the introduction stage. Once you have entered into the profit zone at the end of the introduction stage, now the product will take off. और ये कहानी शुरू होती है बस टेक ऑफ स्टेज से. और ये स्टेज, this stage is marked by a galloping rate of growth. बहुत ज्यादा रेट बढ़ने वाला है सेल्स का. अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? Why this happens? Anybody? अब अचानक देखिएगा जो सेल है बहुत रैपिड रेट से बढ़ने वाला है. ऐसा क्यों? Anybody? Any idea? Yes, anybody? Give a try. गलत सही जो भी, ऐसा क्यों हो रहा है कि अब सेल बहुत बढ़ने लगेगा? The reason is कि more and more customers are now aware, and your word of mouth publicity will also spread over. One satisfied customer would perhaps influence 10 more customers, right? So अचानक देखिएगा there will be a quantum jump in the sale of the product. सेल अचानक बहुत रैपिडली बढ़ने लगेगा. होता है ना, जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं
तो देखिएगा स्पीड कितना जल्दी बढ़ जाता है, एग्जैक्टली वही होने वाला है। अभी तक बहुत स्लो एंड स्टडी चल रहे थे, धीरे धीरे धीरे, लेकिन अचानक देखिएगा सेल विल पिक अप वेरी फास्ट, एंड दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू कैपिटलाइज। यहाँ पर हमें मायोपिक नहीं बनना है, यहाँ पर हमें शॉर्ट साइटेड नहीं होना है कि सब कॉस्ट को बंद कर दीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लीजिए। इफ यू स्टॉप incurring the costs in the marketing, क्या होगा? You will be able to make the most of profit, लेकिन your product will survive for a very short period of time. यहाँ पर हमारा emphasis है कि product should stay as long as possible. We don't mind taking any initiative that could add up to the longevity of the product. Product की longevity बढ़ानी है, product should survive as long as possible, क्योंकि during its survival it will keep on adding to the profit. तो ज्यादा समय तक का प्रॉफिट चाहिए कि बस एक समय का बहुत प्रॉफिट चाहिए? Obviously any sensible mind would consider that the option in which you survive for a longer period of time, generating profit for all these years, cumulative profit होता चला जाएगा. So obviously that is a preferred choice. तो वैसे situation में you have to be very concerned about it. अब marketer करे क्या? What the marketer should do? Now that you have understood that the product is going to pick up very fast, आप भी marketing cost बढ़ाने वाले हैं. You are also going to add up to the marketing cost. और marketing cost बढ़ाने का मतलब क्या है यहाँ पे? अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली वी आर फोकस्ड ऑन द 4 P's. 4 P's के साथ हमें क्या करना है? इसी का एक कॉम्बिनेशन बनाएगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी, राइट? सो ईच ऑफ द 4 P's के साथ आप क्या करेंगे? जो हार्ड कोर स्ट्रेटजी होगा आपको हर एक स्टेज में, इंट्रो हो चाहे ग्रोथ हो, मैच्योरिटी हो, डिक्लाइन हो, किसी भी स्टेज में, ये 4 P के साथ हमें क्या करना है? Basically, that is what marketing strategy is all about. So growth stage में हम लोग क्या करने वाले हैं? Maybe प्रोडक्ट के साथ. तो सबसे पहला है प्रोडक्ट. हम लोग प्रोडक्ट के साथ क्या करेंगे? राइट? क्या कर सकते हैं? What we can do with the product? We will now add more features. We will perhaps work on the quality. We will make it all the more qualitatively superior, right? We will make the product all the more qualitatively superior. उससे क्या होगा? अच्छा, we will offer different variants of the product. Now that we have survived, we will add up many more features. We will add up many more designs. Variants. Fine collection ये देखिए. ठीक है. So that is something that cannot be, that should be considered. तो आप बढ़ाते चलें अपने प्रोडक्ट के डेप्थ को, so that ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा वेरिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइस के साथ क्या करना है? अगर पॉसिबल हो सके स्टेप डाउन द प्राइस अ लिटिल. थोड़ा प्राइस को कम कर लेते हैं. प्राइस को कम करने से क्या होगा? You will further give a boost to the sale. और भी ज्यादा लोग शायद उसको फेवर करने वाले हैं. जो थोड़ा प्राइस सेंसिटिव थे भी उस स्टेज में, they will add to your product. हमें इस स्टेज में मोमेंटम गेन करना है. मोमेंटम जो एक कंबाइंड फोर्स होगा, that will push the product more higher in terms of sale.
और वो ट्रैजेक्टरी एकदम ऐसा बनना चाहिए कि प्रोडक्ट सर्वाइव्स इन द मार्केट फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट. प्राइस के साथ वी स्टेप डाउन अ प्राइस, और कम से कम अगर नहीं पॉसिबल है तो मेंटेन रखें प्राइस को. डोंट इंक्रीज द प्राइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और इंक्रीज अगर आप करेंगे तो इट विल परहैप्स अफेक्ट द लेवल ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. मुझे डिमांड को किसी भी कारण से कम नहीं करना है. So if you increase the price in order to make the most of profit, perhaps your demand will go down. और हमें डिमांड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इस स्टेज में आकर, राइट. डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या करें? व्हाट टू डू विद द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट? मेक इट अवेलेबल एट मोर एंड मोर आउटलेट्स. यू कुड कंसिडर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है when you give the distribution right to many more dealers, right. हालांकि ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का प्रोडक्ट है. अगर आपका प्रोडक्ट स्पेशलिटी प्रोडक्ट है तो बहुत सारे डीलर को हम लोग नहीं देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन राइट. वो तो डिपेंड करेगा कि क्या प्रोडक्ट पॉलिसी है आपकी, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट आर यू डीलिंग इन. लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट FMCG है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो you don't mind giving the distribution right to as many interested parties as possible. You have to make it available at every nooks and corners. हर एक जगह अवेलेबल करवा दीजिए. एकदम किराने के दुकान से लेकर एकदम पान की दुकान तक, जहां भी पॉसिबल है जो डील करना चाहे ले जाइए. लेकिन जहां बहुत इमेज कॉन्शियस होते हैं आप, वैसे में हम लोग सभी को डिस्ट्रीब्यूशन राइट नहीं देते हैं. गेटिंग इट? वहाँ बहुत सोच समझ कर हम लोग फ्रेंचाइजी देते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं, राइट. वहाँ हम लोग ऐसे अंधाधुंध किसी सभी को डिस्ट्रीब्यूशन राइट नहीं देंगे, क्योंकि वी आर कंसर्न अबाउट आवर ब्रांड इमेज. वो डाइल्यूट कर जाएगा. इफ everybody start dealing in the particular brand, तो देयर विल बी अ डायल्यूशन ऑफ द ब्रांड इमेज, जो हम लोग नहीं चाहते हैं. यहाँ इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इमेज इंटैक्ट तभी रहेगा जब थोड़ा प्रोडक्ट स्केर्स रहेगा. नहीं, जो बहुत इजीली अवेलेबल होता है ना, पीपल स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड. और दूसरी बात है कि वो क्वालिटी कंट्रोल भी आपका बहुत कंट्रोल बहुत यू कैनॉट एक्सरसाइज वेरी क्लोज सुपरविजन ऑन द क्वालिटी कंट्रोल इमेज, बिकॉज यू आर वेरी इमेज कॉन्शियस. अब जैसे मान लीजिए डोमिनोज वाले या KFC वाले सबको दे दें डिस्ट्रीब्यूशन राइट. मेनी ऑफ देम परहैप्स मे नॉट बी एबल टू लिव अप टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. उनका जो बिजनेस मॉडल है वो शायद उसको नहीं फॉलो कर पाएंगे. वो उसको बना देंगे ढाबा, खाली नाम आगे रहेगा KFC. वो नहीं चाहिए. तो बहुत सोच समझ कर गिने चुने लोगों को, और आपस में ही कम्पीट नहीं करने सारे फ्रेंचाइजी, इसका भी ध्यान रखकर आप देते हैं लाइसेंस. सो बाय एंड लार्ज यू कुड कंसिडर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आउटलेट्स, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल कुड बी रीच्ड आउट टू. डिपेंडिंग, ये डिग्री क्या होगा वो डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट FMCG है या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है. What to do with the promotion? प्रमोशन आपको अब चेंज करना होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज में जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे थे उस समय आपका अप्रोच था अवेयर करना, गेटिंग इट, डेवलपिंग द क्यूरियोसिटी. नाउ दैट मोस्ट पीपल हैव बीन मेड अवेयर ऑफ, अब आप फोकस करने वाले हैं regarding the generation of the preference. Here you will change the advertisement of your product. Now your advertisement will focus ki how more and more people should be convinced to purchase your product. अब आप अपने प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, राइट.
our product is better and therefore it should be preferred. तो अवेयरनेस से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं प्रेफरेंस की तरफ. We will be giving you a cause for a change over. Why you should consider to purchase our brand. अब हमारा फोकस यहाँ होने वाला है, राइट? और यहाँ पर आप बहुत कंसर्न होते हैं पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि पब्लिसिटी जो होती है ना, अच्छा, एनीबडी हु कुड डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, ये दो टर्म जो है बहुत ही मिसयूज होता है. Anybody who would like to give a try? Any idea about the difference between advertising and publicity? Anybody? Yes? No idea. Give it a try. गलत होगा, उससे क्या अंतर पड़ता है? गलतियां करते हैं तो सीखते हैं हम लोग. कुछ आइडिया नहीं आ रहा है उस टाइप. कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं. सर एडवर्टाइजमेंट अवेयर करने एडवर्टाइजमेंट पीपल को अवेयर करने के लिए करते हैं ताकि वो लोग प्रोडक्ट के बारे में जान सके. एंड पब्लिसिटी सर हम लोग इसलिए करते हैं ताकि मार्केटर्स उस प्रोडक्ट के लिए अटेंशन पा सकें. तो एडवर्टाइजमेंट में अटेंशन पाने का कोशिश करते हैं? नहीं सर, एडवर्टाइजमेंट में आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को, अवेयर करवाते हैं. ठीक है. और सर क्या पब्लिसिटी? यस सर, पब्लिसिटी के बारे में प्रोडक्ट मार्केटर्स अटेंशन पाना चाहते हैं कस्टमर्स को लेके. अटेंशन पाना चाहते हैं, ओके. देखो क्या अंतर है ना, इसको तो अच्छा समझ लेना, बहुत बेसिक कंसेप्ट है और आज के बाद कहीं गलती नहीं होनी चाहिए. एडवर्टीजमेंट जब आप करते हैं, you have to pay to the media to carry your message. आपको मीडिया में स्पेस या टाइम खरीदना होता है और तब जाकर जो आपने ऐड बनाया है उस स्पेस पर या टाइम पर उसको दिखाया जाएगा. So advertising is a paid form of communication, market communication. Advertising में you have to pay, तभी आपका एडवर्टीजमेंट आएगा. अगर आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टीजमेंट, मेक श्योर कि जिनका एडवर्टीजमेंट है उन्होंने पैसा दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया को, उन्होंने स्पेस खरीदा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जितना भी छोटा बड़ा जो व्हाटएवर. आप पैसा नहीं दीजिएगा वो आपका ऐड नहीं आएगा. सिंपल. एडवर्टीजमेंट में पेमेंट होती है मीडिया को, तब वो कैरी करेंगे आपका एडवर्टाइजिंग मैसेज. पब्लिसिटी में कोई पेमेंट किसी को नहीं होता है. जो कंपनी है दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू द मीडिया. क्या मतलब? मीडिया विल राइट स्टोरीज अबाउट योर प्रोडक्ट, योर पीपल, योर प्रोसेस ऑन इट्स ओन. जैसे जब आप देखिएगा कोई फिल्म का रिव्यू, कितना स्टार दिया, 1 स्टार, 1.5 स्टार, 4 स्टार. ये जो फिल्म क्रिटिक होते हैं वो खुद लिखते हैं, इसके लिए प्रोड्यूसर उनको पेमेंट नहीं करता है. मीडिया ऑन इट्स ओन विल राइट स्टोरीज रिलेटिंग टू योर प्रोडक्ट, अच्छा या बुरा जो भी व्हाटएवर. क्यों लिखते हैं आप? क्योंकि रीडर्स पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ऑडियंस सुनना चाहता है, जानना चाहता है, इंक्विजिटिव है, तो वो उसके बारे में पढ़ना चाहेगा. और अगर आप पार्शियल होंगे, इफ यू आर बायस्ड, गलत का सही, सही का गलत लिखेंगे, तो आपके मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी. People will not believe on the stories that you carry. इसीलिए publicity is impartial. Publicity is not biased. It is not prejudiced. जो सही है वही लिखना होगा. अगर आप इधर का बात इधर उधर करेंगे तो आपकी जो मीडिया है उस पर, उससे लोगों का भरोसा उठ जाएगा.
तो पब्लिसिटी में हम पॉजिटिव या नेगेटिव भी लिख सकते हैं. इफ यू डू नॉट लाइक द फिल्म राधे, तो लिखा जाएगा कि बकवास फिल्म है, क्रिटिक लिखेंगे इसको. लेकिन अगर वो सर एक हाँ बोलो. सर एक कस्टमर भी एक प्रोडक्ट के बारे में पब्लिसिटी कर सकता है. बिल्कुल, वेरी गुड. इसको बोलते हैं हम लोग वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. If you have used a product and you are satisfied, you will tell others. इसको लोग बोलते हैं WOM, word of mouth publicity. और आप जो कहेंगे दूसरों को, उस पर लोगों को ज्यादा भरोसा होगा. They will believe you. पब्लिसिटी की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, क्योंकि आपने उसको झेला है. अच्छा लगा तो आपने अच्छा बताया, तो हम बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएंगे. आपने कहा बुरा है, तो अगेन आई विल बी वेरी कन्विंस्ड वेरी इजीली, क्योंकि यू आर टेलिंग ऑल दिस ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस. ये तो कहीं सुनी बात नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी आएगा और कुछ कह के चला जाएगा. एंड डू यू नो समथिंग, ये सेलिब्रिटी चार्ज करते हैं इन करोड़. अब कोई भी सेलिब्रिटी XYZ, अमिताभ बच्चन आए, कुछ कह के चले गए, ऐसा थोड़े कि ही और शी वॉट एवर सेलिब्रिटी जो है, दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट. एक लाइन था कहना, कह दिया, निकल गए. लेकिन सेलिब्रिटी के साथ लोग रिलेट करते हैं. सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बिकॉज यू सी दीज पीपल इन गुड लाइट. तो ये जो कहते हैं उसकी बात का असर आप पर ज्यादा होता है, बिकॉज यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द सेलिब्रिटी. तो कुछ भी कह देंगे, किसी को कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ भी कह देगा वो. तो एडवर्टीजमेंट पे लोगों का विश्वास कम होता है एज कंपेयर टू पब्लिसिटी. अगर मीडिया में कोई फीचर आता है, कोई रिपोर्ट आता है अबाउट एनी प्रोडक्ट, आप उसको बहुत जल्दी बिलीव करने वाले हैं. यू विल बिलीव अबाउट द ट्रूथफुलनेस ऑफ द क्लेम. लेकिन एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं होता. एडवर्टीजमेंट में यू हैव टू टेक द स्टोरी विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. आप आंख मूंद के विश्वास नहीं कर सकते हैं, ओह यार ये है तो सही होगा, क्योंकि वो तो एडवर्टाइज कर रहा है. उसका तो पर्पस ही कमर्शियल है, उसका तो पर्पस ही है कि आपको इन्फ्लुएंस करे. किसी एड को देखा है जहां कहते हैं कि मेरा सॉरी मेरा प्रोडक्ट बहुत बकवास है, मत खरीदिएगा, इट इज ऑफ नो यूज. ऐसा कोई एड दिखा आपको आज तक? वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही बताएंगे ताकि आप इन्फ्लुएंस्ड हो, तो आप खरीदें. पब्लिसिटी तो नेगेटिव भी हो जाती है. आजकल कितना लोग लिख रहे हैं एडवर्स रिगार्डिंग दिस फिल्म राधे. लेकिन ये अगर सच्चाई नहीं है, तो ये जो मीडिया है, दे विल बी लूजिंग अ सॉरी. इसलिए आप बायस नहीं हो सकते हैं. अगर स्टोरी अच्छी है तो आपको अच्छा लिखना होगा, बुरा है तो बुरा लिखना होगा, राइट. और देखते हैं आजकल कितने लोग पब्लिसिटी के लिए कंसर्न होते हैं. हु इज द पब्लिसिटी क्वीन इन इंडिया? आजकल तो सभी देखिएगा पब्लिसिटी के लिए जान दिए हुए हैं. पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेगा इंडिया. कौन ऐसे लोग हैं जिनको बोलते हैं पब्लिसिटी क्वीन? लेडीज, any name that comes to your mind? Rakhi Sawant, yes, Khushi, very good. Rakhi Sawant is publicity queen. और ऐसे लोग बहुत चार्ज करते हैं, तरह तरह के अलग अलग लोग को भी कह सकते हैं, जो कि लाइमलाइट को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे. कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल करें कि सारा मीडिया हमें कवर करने लगे. तो I have not paid media anything, but the media will capture a story, right? कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर दीजिए कि आप मीडिया आपका पूरा अटेंशन देने लगे, कवर करने लगे, तो मुझे तो मुफ्त का पब्लिसिटी मिल गया ना. इनफैक्ट पब्लिसिटी मुफ्त का ही होता है. नहीं, अरविंद केजरीवाल देखिएगा, ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कि कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल कर दीजिए, मीडिया विल कैच योर अटेंशन एंड दे स्टार्ट राइटिंग स्टोरीज अबाउट इट, और आप you will become the talk of the town. So this is what publicity is. You don't have to pay, लेकिन एडवर्टीजमेंट में you have to pay. तभी आपका एडवर्टीजमेंट आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा.
सिंपल। और पब्लिसिटी में आप पॉजिटिव या नेगेटिव लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट में केवल पॉजिटिव ही लिखा जाता है। सो यू आर वेरी कंसर्न अबाउट द एडवर्टीजमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। आपको चेंज करना होता है, अवेयरनेस से शिफ्ट करना होगा प्रेफरेंस डेवलप करने में। अब मुझे इंसिस्ट करना होगा कि माय प्रोडक्ट इज सुपीरियर। कभी देखा है एडवर्टीजमेंट जहां लोग कंपेयर करते हैं ब्रांड्स को? इंडिया में अभी भी बैंड है, यू कैन नॉट क्लेम योर सुपीरियरिटी। सभी तो क्लेम करते हैं वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। उसका ये आप कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी दैट इज कंडक्टेड बाय अ थर्ड पार्टी। आप खुद नहीं कह सकते हैं कि आई एम द बेस्ट। वैसे भी ठीक नहीं लगता है ना, अगर आप कहें कि आई एम द बेस्ट। इससे बेहतर है कि दूसरे कहें कि ही इज द बेस्ट। तो ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट में आप देखिएगा जहां कंपेयर करते हैं, वो हमेशा रेफरेंस देंगे कि somebody else conducted a study and they found out, right? So आपने देखा है ना, जैसे आप देखिएगा किसी ऑटोमोबाइल में, इधर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड कॉलम में देखेंगे फीचर्स और ऊपर ब्रांड एक्स ब्रांड वाई, और दोनों में कंपेयर करेंगे, देखिए हमारे में क्या क्या है, टिक लगाएंगे 4-5 में, और इधर टिक लगेगा केवल 1-2 में, ताकि यह लगे पता है कि लुक आवर प्रोडक्ट इज लोडेड विद फीचर्स, बेनिफिट्स, आवर प्रोडक्ट इज सुपीरियर। उसको बोलते हैं कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। तो इस स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में, कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, चलिए अभी हम अटेंडेंस की थोड़ा ले लें। एनी क्वेश्चन बाय द टाइम, जब तक अटेंडेंस है वो आपका लेते हैं। और कुछ एग्जांपल्स ठीक है। सो दैट वाज इट कि आप चेंज करें। एक मिनट, कि आपको 4P के साथ वैसे चेंज करना पड़ेगा। और पॉसिबल अगर हो सकता है, यू मे ऑल्सो एंटर इनटू अ न्यू टेरिटरी। तो 4P के साथ क्या करना है वो तो पता चल गया, इसके साथ आपको दूसरे टेरिटरी में भी एंटर करना सोचना होगा। जैसे इफ यू आर सेलिंग इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, हो सकता है एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स, याद है ना, रोल ऑन, we have to keep on rolling on, we will unfold to the other segments of the market। टेरिटोरियल कवरेज हम लोग बढ़ाने वाले हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप किसी खास मार्केट में अपना सेल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। पटना में मेरा सेल बढ़ाना है, मेरा भी मार्केट शेयर 20% है, इसको हम 30% करना चाहते हैं। तो हम लोग वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब होता है सेल्स वॉल्यूम जनरेट करना, हाउ टू जनरेट द सेल्स वॉल्यूम। ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रोडक्ट बिके,
दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। लेकिन सेल बढ़ाने का दूसरा तरीका हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे मार्केट सेगमेंट में ही एंटर करते हैं। लेट अस एंटर इनटू अ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। और ये हो सकता है टेरिटोरियल बेसिस पर, अभी तक केवल पटना में थे, लेट अस मूव टू रांची, लेट अस मूव टू उसी तरह का जो मार्केट है, सिमिलर मार्केट, उसमें हम लोग एंटर करते हैं। तो दिस इज अनदर क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पर वी आर नॉट गोइंग टू लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज आवर सेल्स ग्रोथ। वी हैव टू प्रोवाइड एन इम्पेटस, उसको बहुत फोर्स से धकेलना होगा। जितना फोर्स अभी हम लोग लगाएंगे ना, उतना ज्यादा बेनिफिट हमें मिलने वाला है during its stay in the market. So we are not going to leave any stone unturned during the growth stage. Growth stage में हम लोग कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ने वाला है। अब देख रहे हैं एड चेंज कर रहे हैं, फिर से खर्चा होगा प्रमोशन पर, और केवल एड की क्या बात करें, पूरा का पूरा प्रमोशन चेंज कर देंगे। प्रमोशन की जब बात करते हैं तो क्या होता है, what are the different elements of promotion? Advertising, personal selling, face to face जब interaction होता है sales person से, so we are going to appoint many more sales persons, sales promotion, कुछ offers, कुछ schemes, मतलब कुछ भी जो सेल बढ़ाने में हेल्पफुल होगा, we will attend to that. मुझे मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए, let us speed up, let us accelerate. 40 के स्पीड से चलाने से काम नहीं चलेगा, मतलब हाईवे है, उड़ जाइए। क्योंकि जितना स्पीड होगा ना, उतना मोमेंटम गेन कर पाइएगा और उतने लंबे समय तक आप मार्केट में ठहर पाइएगा। यहाँ अगर कोई कमी रह गई ना, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले फेजेस में दिखेगा। इसीलिए वे नॉट बॉदर्ड, प्रॉफिट विल स्टार्ट कमिंग वे। लॉस के दायरे से हम लोग निकल चुके बाहर, लॉस का कोई सेंस नहीं है अब। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता अगर हम लोग अपने मार्केटिंग कॉस्ट को बहुत ज्यादा एक्सलेट नहीं कर लेते। हम लोग मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, एंड विथ एन इंटेंशन, इट इज एन इंटेलिजेंट मूव, इट इज विथ अ पर्पस, यूं ही नहीं बढ़ा रहे हैं। And the idea is to ensure that we survive in the market for the longest possible time period. क्योंकि जब तक प्रोडक्ट मार्केट में रहेगा तब तक आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा। तो हम लोग यही चाहेंगे कि the profit is generated for a longer period of time. शॉर्ट लिव्ड होने से क्या फायदा है, यहाँ लॉन्जिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, जैसे मान लो किसी पत्थर को तुम हल्का सा फेंको, ऊपर जाएगा, तुरंत चलाएगा नीचे, और बहुत फोर्स लगा के फेंको, मतलब स्लैंटेड मैं 45 डिग्री के एंगल में फेंकिए, तो जितना फोर्स लगेगा ना उतना ही दूर गिरेगा पत्थर। 45 डिग्री पर उठाइए और यहीं छोड़ दीजिए तो यहीं पर गिर जाएगा। यही फोर्स की बात हो रही है। लेट अस पुश द प्रोडक्ट टू द maximum force so that it survives for the longest period of time in the market. यहाँ पर यही कैच वर्ड है। जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज में सर्वाइवल वाज द इंपॉर्टेंट इश्यू, यहाँ पर है एडिंग टू द लॉन्जिविटी, कैसे बढ़ सकता है इसका लाइफ। वी वांट टू एक्सेलरेट द ग्रोथ rate of the product so that the product survives in the market for the longest period of time. इसके लिए कुछ भी करना है, इसके लिए जो कुछ करना होगा, आई डोंट माइंड, राइट। देखो, हर एक स्टेज का अपना अपना एक इंटेंट होगा, उसी को समझना होगा, उसी के लिए स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी। देखा, यहाँ हमें यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था, हम लोगों ने प्रॉफिट से परहेज किया, हमें नहीं चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमम। क्यों? ट्रेड ऑफ हो रहा है, इसके बदले हमें दे दीजिए क्या, लॉन्जिविटी, लंबी उम्र प्रोडक्ट का।
क्योंकि बहुत कम समय अगर प्रोडक्ट रुकेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट बना के चला जाएगा, वो क्या फिर तो प्रॉब्लम वहीं का वहीं आ जाएगा, फिर आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव करे and keeps on generating the profit for the business. So whatever changes, whatever initiative that will add up to the life of the product is well received by the marketer. Marketer वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो obviously है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, इसीलिए इस स्टेज में प्रॉफिट कर्व का हाईएस्ट पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। कुछ लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जब सेल बढ़ता है हाईएस्ट रेट से, तो प्रॉफिट तो वहीं मैक्सिमम होना चाहिए ना। ये क्या बात हुई कि सेल का जब स्लो डाउन हो जाएगा तो वहां प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा? आपने देखा है उस पीएलसी के कर्व में, दोनों कर्व का, सेल का हो या प्रॉफिट का हो, दोनों कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है? मैच्योरिटी स्टेज में। ग्रोथ स्टेज में दोनों कर्व का हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। अमेजिंग। जब आप एकदम एक वर्ड है कन्विक्शन, मींस कन्विक्शन मतलब होता है फर्म बिलीफ कि उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आप नहीं खोजते हैं। आई हैव अ फर्म बिलीफ दैट दिस प्रोडक्ट इज द बेस्ट एंड आई विल बाय ओनली दैट प्रोडक्ट। अब आप मुझे बहुत आसानी से कन्विंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आई हैव द कन्विक्शन। अब कोई डीलर जो रिटेलर है वो हमको कुछ कहेगा तो आई विल नॉट चेंज ओवर, नहीं मुझे वही चाहिए, आप कुछ कह लें, तो कन्विक्शन है। प्रेफरेंस को लोग चेंज कर सकते हैं। हम ब्रांड